welcome to the third phase of International Webinar Series, Past, Present and Future, Global Pandemic and India COVID-19, which is dedicated to celebrating sports, physical stamina and mental health. Major teams, Delhi under 19, India under 19, Rajasthan Royals. Playing role is wicketkeeper batsman. Batting style is left-handed batsman. Is none other than a batting batsman Anuj Rawat, who hails from Uttarakhand. Talking to him is Shubhang Balodi, working in a corporate sector, but could have been a cricketer. He may be out of cricket, but cricket was never out of him. Over to you, Shubhang. Welcome you both for a very interesting discussion that we are going to have now. Thanks a lot, ma'am. Indeed, it's a privilege to be out here and interacting with Anuj, probably the next rising star from Uttarakhand. So welcome Anuj. Thank you. So how has it been, Anuj, past 2.5 months? So I got to know that probably you've been selected for Rajasthan Royals and unfortunately could not debut this time around. So how is the feeling as of now? Feeling as if it's normal. It's like everybody knows it's a pandemic because health is more important than any other thing. So we are all waiting for everything to get over and let's start again. Correct. But How it like the goes up. good news, probably the good news is that IPL has been planned for Yeah, somewhere around September. So that is one yeah, they're positive. planning. So with respect to the entire 2.5, 3 months lockdown, so have you prepared mentally for this challenge? Because in fact, I was coming on to the fact that Uttarakhand has been producing left-handed batsmen. So after Rishabh Pant and Pawan Negi, so you are the next left-handed batsman in the limelight. So how does it feel like? How do the preparations go on? Situation is like we are more focusing on mental health right now. In this lockdown, we are more focusing on mental health. And as if this pandemic gets over, we are ready to take over what's next. And physically, it's like it's been 2 weeks I've started training physically. So it's been 2 weeks I've been training physically outside. And more of one in this lockdown, I think we should more focus on mental health. That's more important. Exactly. That's more important as well. Mental health, as well as we play at higher level. The mental health, from my perspective, is the main issue of every cricketer. बिल्कुल अनुज, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा फोकस भी इसी वेबिनार का भी यही है कि कैसे फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ को कायम रखा जाए, और वो कैसे रखा जाए वो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो आप अपना रूटीन बताइए, कैसे आप अपने आप को रखते हैं, तैयार करते हैं। नहीं, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। जैसे ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल भी जैसे घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसमें मैं जो मेरा वो था, जो मेन फोकस था कि मैं अपना कैसे मेंटल हेल्थ और इंक्रीज कर सकता हूँ, मेडिटेशन, कैसे मैं अपना को कितना पेशेंट और काम रख सकता हूँ। तो मेरा मोटिव मेरा यही था। जब जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो जैसे 2 महीने लास्ट या 1 मंथ और 2 मंथ, तो मेरा मेन फोकस अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करना है हाफ एन आवर का। तो वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा था। फिर जैसी थिंग्स अच्छी बेटर होती गई तो उसके बाद फिर मैं फिजिकल मोर ट्रेनिंग स्टार्ट आउटडोर करने लग गया, ताकि जैसे ये पैंडेमिक खत्म हो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मैं गेम में जा सकता हूँ। स्ट्रेट कोई मेरे को बेसिक स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं बेसिकली अभी लॉकडाउन में पूरा बेसिक अपना हल्का इम्प्रूव करता रहूँ थोड़ा बहुत, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। So during this time, Anuj, so since you are very young in your career, and obviously there are stalwarts like our own from Uttarakhand itself, Rishabh. So is there any interaction that goes on between a senior player and a junior player? And what are the like advices that comes across to you from different sectors? इंटरेक्शन तो सिर्फ जैसे अगर आप साथ में खेल रहे हो, कोई रणजी मैच खेल रहे हो, जैसे ऋषभ भाई और मैं अगर साथ में खेले, तो अभी लास्ट सीजन अभी T20 मैच हुआ था तो हम साथ में खेले थे।
तो ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, बट हाँ, अगर आप देख रहे हो, आप सीनियर है, तो आप ऑब्वियसली आप सीखने के कुछ मिल रहा है। अगर वो कुछ ना भी कहते हैं, भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है कुछ। But in fact, I was looking at तो your आप videos also of your batting, and also you resemble a lot like Rishabh Pant with your high lifts and your swings and clearing the entire boundary. So that has a strong resemblance to Rishabh's batting also, and you are a wicket keeper also. So that is a very like he could be your role model for this particular generation. Is that so? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मतलब मेरे को जब उन्होंने स्टार्ट किया था ऋषभ पंत ने, तो क्या पता मैंने उनसे पहले स्टार्ट किया हो विकेट कीपिंग वेटिंग, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि नहीं वो खेल रहे हैं तो अब रोल मॉडल तो बना दिया जाए। अब उन्होंने अपने टाइम पे स्टार्ट की थी विकेट कीपिंग, मैंने अपने टाइम पे स्टार्ट की थी, मतलब साथ-साथ चलता रहा है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं रोल Hmm. मॉडल, बट हाँ, वो सीनियर हैं तो लेकिन एडमायर करता हूँ मैं ऑब्वियसली उनको कि हाँ, थोड़ा बहुत उनको सीखने के लिए मिलता है उनसे काफ़ी कुछ। And so like right now it's IPL, so you are planning for a bigger future in terms of test cricket, or you're taking it still slow? नो, नो, डेफिनिटली आई एम लुकिंग इट फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप टी20 सोचते हो, तो आप टी20 के बाद आप वनडे में या टेस्ट में अगर उसके बाद जाने की कोशिश करते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन Hmm. अगर आपका फोकस है कि आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो आप ऑटोमेटिकली आप शॉर्टर फॉर्मेट इजीली अडेप्ट कर सकते हो, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टी20 हो। Hmm. तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी अगर यंगस्टर है, कोई भी है, तो आपको सीधा एम रखना चाहिए टेस्ट क्रिकेट पे, जो मेन क्रिकेट है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अडेप्ट कर सकते हो वनडे और टी20 को। Correct. And coming to the infra that we have, Anuj, in Uttarakhand, so how would you suggest like improvements that can happen in infra, like players like you playing for Delhi, probably could have played for Uttarakhand also. So where is the system lacking, or where is it? Where is the gap that is allowing people from Uttarakhand to move out of their state? तो मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुआ था क्रिकेट खेलने, तो इट्स बीन लाइक 10 years। तो उस टाइम पे उत्तराखंड में क्रिकेट कोई एसोसिएशन नहीं थी, कुछ नहीं था। बट फ्रॉम लास्ट 2 सीजन्स एसोसिएशन है उत्तराखंड में, तो काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं उत्तराखंड क्रिकेट के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई। बट अब मोर ऑफन जो बाहर खेल रहे हैं ऑटोमेटिकली, जिनको अपनी जगह मिल चुकी है स्टेट में, जिन्होंने उनको चांस दिया है, तो वो अच्छी चीज़ है अगर वो वहाँ खेल रहे हैं। Mhm. But you see, in near future, because why I'm asking this, because during our times also, uh, people who were excelling, who wanted to excel in cricket, they either moved out to Delhi or to a bigger city like Kanpur and Dehradun. We had a very good talent which could not just come out. So is still there people who are not able to get that opportunity to move out. In fact, we have cricket academy also in Dehradun right now. Abhimanyu Cricket There Academy is there. there are So, many. so these cricket academies, are they also trying to nurture the talent in the right way? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लास्ट 2 सीजन से जो उत्तराखंड की जो क्रिकेट है, काफी बदलाव हुआ है इसमें, काफी मतलब पॉजिटिव्स आए हैं कि काफी अच्छा कर सकती है उत्तराखंड क्रिकेट। अब थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मेरे को लगता है कि वो काफी और स्टेट्स जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कम्पीट कर सकती है। ऐसा टैलेंट है उत्तराखंड में। मेरा मानना ये है कि Okay. काफी इम्प्रूव कर Okay. सकती है वो। And school cricket का जो है एक चार्म होता है हमेशा से, स्कूल क्रिकेट इज दी like the starting ground. तो स्कूल क्रिकेट में अभी how is the tempo, how is the preparation, how seriously people are taking school cricket in your generation probably नहीं, also? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैंने भी एक स्कूल से ऐसे ही करा था। जो बेसिकली क्या है, स्कूल क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो आपका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। Correct. काफ़ी अच्छे, हाँ, बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं खेलना, तो काफ़ी ईज़ी रहता है आगे आगे बढ़ने में, काफ़ी अच्छा रहता है। So in बिल्कुल आप उत्तराखंड जैसे हमारे, yeah, आंटी. हाँ, बिल्कुल आपने अनुज बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल से हम स्कूल में जो फाउंडेशंस बनती हैं वो काफी इफेक्ट करती है और वो लाइफ लॉन्ग रहती है, क्योंकि चाहे वो किसी भी फाउंडेशन हो, चाहे वो मैथ्स की हो या संस्कृत या हिंदी की या लैंग्वेज की, जो भी फाउंडेशन है वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। तो आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल, कही है। बिल्कुल। दूसरी बात हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत करी अपनी क्रिकेट की? मैंने 2009 में मैं रामनगर में रहता हूँ उत्तराखंड में, तो मैंने यहीं पे जस्ट पहली अकेडमी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, तो मैंने फादर को बोला कि नहीं मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो अकेडमी मैंने ज्वाइन करी।
काफी एक डेढ़ साल बाद जो थोड़ा बेसिक्स पता लगा क्रिकेट का थोड़ा बहुत, उसके बाद डे आफ्टर 1.5 ईयर फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था क्रिकेट का, तो इसलिए मैं थोड़ा दिल्ली शिफ्ट हो गया। और उसके बाद थिंग्स अच्छी होती रही, 1-2 साल स्ट्रगल हुआ, टीम का करता रहा, मतलब छोड़ा नहीं, फोकस करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, मैचेस खेलता रहा, लोकल्स जितने टूर्नामेंट हैं। फिर स्टार्ट 2016-17 मेरे को पहला ब्रेक थ्रू मिला दिल्ली अंडर 19 में। फिर उसके बाद थिंग्स बेटर होती गई, नेक्स्ट सीजन में रणजी ट्रॉफी खेलिया डायरेक्ट, तो उसके बाद फिर जर्नी ही चल रही है आगे, स्टेप बाय स्टेप अब चलते रहेगा। Great. तब I mean, so आपने all the रियलाइज तब आपने रियलाइज किया कि आप तो क्रिकेट में ही जाना है, बिकॉज एक होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, फौज, लॉयर, इससे प्रोफेशंस ज्यादा बनते हैं या सोसाइटल प्रेशर्स रहते हैं, तो आपको क्यों लगा कि आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्रिकेट ही खेलना है? हाँ, नहीं मैम, मेरा फादर एक्चुअली मेरे फादर जो है वो क्रिकेट खेलते थे पहले, ओके, थोड़ा बहुत ही सही, मतलब लोकल्स में रामनगर में क्रिकेट खेलते थे, तो वही जुनून बचपन से आता गया। घर के अगल बगल मैच खेलते थे तो काफी अच्छा लगने लगा क्रिकेट खेलते, तो फिर मेरे फादर को बोला कि मेरे को नहीं, अगर क्रिकेट अकेडमी खुल गई तो मेरे को ज्वाइन करना है, वहीं से पैशन स्टार्ट होता गया। फिर आगे सोचा कि हाँ नहीं, इसको प्रोफेशन बनाना है, तो ऐसे। शुभांग, तुम भी अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, बिकॉज I know how passionate you were about cricket in your school days and exactly, Andy. So that's what even I was trying to feel that particular feeling. So in fact, during our times, school cricket, like I asked Anuj the question also, school cricket was the kind of जो जीता वही सिकंदर kind of moment during our times. क्योंकि इतनी opportunities नहीं थी, we didn't have any district cricket at that time. So school cricket, people used to look forward to getting into school teams or like getting into uh, kind of a state team itself. So that kind of a feeling was there. Right now, things have improved a lot in Uttarakhand cricket, as Anuj has just mentioned. There are a lot of many academies. There is a lot of talent nurture which is happening. And there have been certain coaches also during our times who have also moved out into these academies, and we have also coached under them. And right now, we are hearing their name as big. So it is always a good feeling that we have also coached under them, and they are also making uh, big cricketers. They are also making good name for themselves. So it's a good feeling in that way. So always good to connect with Uttarakhand cricket, with people who are hailing out from Uttarakhand, making good name for our state, for our community, for the entire nation. So that's a good thing. So Anuj, would you like to share any on field some funny moments that has gone across in your cricketing career, which probably you want to share? शेयर, जैसे मेरा पहला सीजन था रणजी ट्रॉफी का, तो हमारे साथ मतलब लेजेंडरी हैं जो गौतम गंभीर, उनके साथ ड्रेसिंग Okay. रूम शेयर करने का मौका मिला काफी। Mm-hmm. तो उनसे, जैसे मेरा पहला सीजन काफी अच्छे गया था, मैंने 3 मैच खेले थे, तो ऑलमोस्ट मैंने 50 के एवरेज से रन बनाए थे, 200 समथिंग। तो मैंने उनसे एक बात पूछी थी, जो मेरे को लगता है कि सारे यंगस्टर जो भी अगर कोई रणजी ट्रॉफी खेलता है या आने वाले टाइम पे, जो मेन चीज उनको फोकस करनी चाहिए कि मैंने उनसे पूछा ऑब्वियसली कि आप कैसे कर सकते हो, मतलब सर्वाइव, या मतलब सर्वाइव के लिए मतलब आप कैसे बेटर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। तो उन्होंने कहा कि आप पहले सीजन तो हर कोई रन बनाता है, पहले सीजन तो हर कोई रन बनाता है, मेन है कि आप कैसे उसको बरकरार रखते हैं नेक्स्ट सीजन में या उससे नेक्स्ट सीजन में, जो काफी मेरे को लगता है काफी मेन पॉइंट है कि काफी क्रिकेटर्स की है कि बरकरार रखना उस चीज को सीजन टू Correct. सीजन, काफी गहरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आगे खेलने। हाँ, करेक्ट। मेरे ख्याल से जीवन के हर पहलू में ये बात बहुत महत्व रखती है कि एक बार कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसको बार बार करने से ही बार बार करने से ही करना। रेपिटेटिवनेस, बिल्कुल वही, तभी उसको आप आत्मसात कर पाते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं, और उसको तभी हम निकाल भी पाते हैं। वो जो अच्छी ट्रेनिंग होती है वो बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बात उन्होंने कही आपसे। So, like somewhere like Gautam Gambhir telling you about the tape. So, any other cricketers whom you have shared the dressing room or during field या फिर कभी ऐसे sledging moments
with senior cricketers? स्लेजिंग मोमेंट्स मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ मेरा एक बार इंटरेक्शन हुआ था, बात हुई थी। मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था, तो मैं विकेट कीपर था, तो मैंने ऑब्वियसली मैंने सवाल करा। मैंने कहा कि जब आप मतलब कोई लास्ट ओवर होता है, कोई ऐसी टेंस सिचुएशन होती है, तो आपके माइंड में कभी ऐसा ख्याल आता है कि मेरे हाथ से रन ना छूट जाए या मेरे से कुछ स्टंप ना छूट जाए या कुछ हो जाए? तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी कि अ, मैं ऐसा कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मेरे माइंड में मतलब इतनी चीज़ें चल रही होती है, मैं एज़ अ कैप्टन कि मेरे को फील्ड प्लेसमेंट ऐसे करनी है, बॉल यहाँ डलवानी है, तो मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मुझसे छूट जाए या कुछ हो जाए। तो कह रहे हैं मेरा माइंड ऐसा कुछ जाता ही नहीं कभी कहीं कि मैं छूट जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा जूनियर क्रिकेटर अगर हम खेल रहे हैं तो और सबके ऑटोमेटिक सबके दिमाग में आएगा अगर टेंस सिचुएशन रहेगी कि शायद वो रन मुझसे ना छूट जाए या मुझसे स्टंप ना छूट जाए, ऐसा उस चक्कर में और ज्यादा छूटते हैं। हाँ, उन्होंने pressure कही कि मैं आएगा। ऐसा कुछ मेरे उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है कि फील्ड प्लेसमेंट लगानी है या बॉल इधर डलवानी है किधर डलवानी है, तो मैं सोचता ही नहीं हूँ इन चीज के बारे में। तो उसके बाद से फिर मैंने भी सोचना थोड़ा कम किया, फिर सही रहता है। स्लेजिंग मोमेंट्स मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ मेरा एक बार इंटरेक्शन हुआ था, बात हुई थी। मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था, तो मैं विकेट कीपर था, तो मैंने ऑब्वियसली मैंने सवाल करा। मैंने कहा कि जब आप मतलब कोई लास्ट ओवर होता है, कोई ऐसी टेंस सिचुएशन होती है, तो आपके माइंड में कभी ऐसा ख्याल आता है कि मेरे हाथ से रन ना छूट जाए या मेरे से कुछ स्टंप ना छूट जाए या कुछ हो जाए? तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी कि अ, मैं ऐसा कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मेरे माइंड में मतलब इतनी चीज़ें चल रही होती है, मैं एज़ अ कैप्टन कि मेरे को फील्ड प्लेसमेंट ऐसे करनी है, बॉल यहाँ डलवानी है, तो मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मुझसे छूट जाए या कुछ हो जाए। तो कह रहे हैं मेरा माइंड ऐसा कुछ जाता ही नहीं कभी कहीं कि मैं छूट जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा जूनियर क्रिकेटर अगर हम खेल रहे हैं तो और सबके ऑटोमेटिक सबके दिमाग में आएगा अगर टेंस सिचुएशन रहेगी कि शायद वो रन मुझसे ना छूट जाए या मुझसे स्टंप ना छूट जाए, ऐसा उस चक्कर में और ज्यादा छूटते हैं। हाँ, उन्होंने pressure कही कि मैं आएगा। ऐसा कुछ मेरे उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है कि फील्ड प्लेसमेंट लगानी है या बॉल इधर डलवानी है किधर डलवानी है, तो मैं सोचता ही नहीं हूँ इन चीज के बारे में। तो उसके बाद से फिर मैंने भी सोचना थोड़ा कम किया, फिर सही रहता है। I think that is related to pressure of the game also. फ्रेश ऑफ कितना pressure ले रहे हो, and as a captain obviously that's why they say कि captaincy का pressure it's way beyond. ध्यान। और मैं इसको जोड़ूंगी जो श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना काम कर रहे हो और आप सोचने लगे कि ऐसे छूट न जाए, हाँ, तो आप रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट पर ध्यान रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारे एक्शन में असर उसका ही है। तो ये ऑटोमेटिकली काफी हाँ जी, इनबिल्ट प्रेशर अपना खुद ही बना लेते हैं हम, खुद बिल्कुल ही अपना, Hmm. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें लॉस ही होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत मतलब बहुत ही आपने साझा की है बढ़िया बातें। If it's coming from MSD, मतलब that is a big advice. So, and generally, right now, Anuj, we've seen all of a sudden after during this lockdown, there is a lot of TikTok interactions and lot of involvement in social media. So, just as a pure passionate क्रिकेटर्स की क्रिकेटर्स की cricketers, cricketers, so how do you sense that? What is your take on that? अरे लोग ऐसे मतलब मेरे पास भी ऐसा अप्रूवल आया था कि आप टिकटॉक की वीडियोस बनाओ, आप ये करो वो करो, बट मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ करने से आप ऐसे फेमस हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मोर ऑफन आप अगर आप फील्ड में अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप फेमस हो गए, अनलेस ये सब चीजें करने से। अगर आप फन के लिए कर रहे हो तो अलग बात है वो। Right. So the question, मतलब kind of situation is cricket an entertainment or is cricket a sport? Cricket obviously is a sports for sportsmen who are playing, or obviously it's a sport for them, but जो लोग देख रहे हैं बाहर उनके लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। वो नहीं जान सकते कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड में या वो क्यों खेल रहा है, किस लिए खेल रहा है। लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं क्रिकेट ज्यादातर। That sums up the entire point actually. For us, it is entertainment. For you, all the cricket, it's a hard work, जो खेल रहा है उसे पता है वो क्यों खेल रहा है, या हार्ड वर्क and that is not coming out. You know, that people don't realize the hard work behind it. They only see what is the entertainment factor. आउट
आउटकम है, ओनली द आउटकम की क्या है उसके रन बाद, क्या फेम मिल रहा है या क्या मिल रहा है, वो नहीं देख रहे कि क्या पीछे कैसा गुजरा है साल पहले के। करेक्ट, जो है वो है राइट नाउ, व्हाट इज द परफॉर्मेंस दैट ओनली काउंट्स. So that is where in काउंट fact the consistency factor comes into play. You are consistent वेरी मच throughout, like कंसिस्टेंट। somewhere like the likes of Sachin Tendulkar or even in fact Virat Kohli, consistent throughout their entire career. So then it becomes a prodigy, एक legendary figure वो बन जाते हैं because they maintain that consistency throughout. So did you any chance of interacting with the legends of our time, the Rahul Dravid or Saurabh Ganguly or Sachin Tendulkar by any chance? नहीं हाँ, मैं राहुल सर के साथ मैं इंडियन 19 में उनके साथ था, तो अच्छा. ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता रहता है उनके साथ। तो So what काफी kind अच्छी of वो a person पॉजिटिव is वाइब्स मिलती थी उनसे हमेशा। हम what kind of a person is Rahul Dravid? So he's supposedly very rigid, very disciplined kind of a guy. That's how it comes out. वेरी डिसिप्लिन, या इज वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन। काफी अच्छी फीलिंग आती है उनके साथ। In fact, he had coached under 19. I think you're talking about that tenure. या Or who is your personal ideal, cricket ideal you look to when you are talking about your batting style or your fielding style or your style एज अ on the क्रिकेटिंग ground? आइडल मैं मैं एज अ क्रिकेटिंग आइडल मैं विराट कोहली को फॉलो करता हूँ बिल्कुल। किस तरह से वो फोकस अपने क्रिकेट को लेकर हैं, कैसे कंसिस्टेंट हैं, मैं उन्हीं को देखकर अपना मतलब दिन शुरू करता हूँ, उन्हीं को सोच के मतलब कि वो किस तरह से कंसिस्टेंट है, वो क्या चीज करते हैं उस चीज कंसिस्टेंटी के लिए, क्या प्रोसेस है उनका, उस चीज को मैं ज्यादा काफी एडमायर करता हूँ। I think You strength. believe in aggression into sports का में कितना आप believe करते हैं? Because हाँ on the one hand we have Rahul Dravid who is calm and poised, and on the other hand we have Virat Kohli who is quite aggressive on the as far as the cricket style is concerned. So आप बिलीव करते हैं कि एग्रेशन ऑन द ग्राउंड होना चाहिए? अगर मैम वो एग्रेशन आपका अगर आपको अगर पॉजिटिविटी देता है, अगर एग्रेशन, तो मैं कहता है फॉर अ गुड कॉज अगर वो देता है तो अच्छी बात है। वो अगर उनको किक मिल के उस चीज से उनको और अच्छा करने का मौका मिलता है या तो काफी अच्छा है। अब किसी को नहीं सूट करता है एग्रेशन तो वो काम रहता है, किसी को सूट करता है, वो उनको अच्छा लगता है, उनको और रन बनाने का मोटिव मिलता है, तो चलो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। So, like Anuj, you talked about Virat Kohli. You look forward to Virat Kohli. I think one thing which Virat has brought in Indian cricket is the strength in the game and the physique that he has completely changed over. Earlier, what Virat we knew during the 2003, 2011 World Cup, and the current Virat that we see, entire change in the entire persona of individual. So that is something that probably is that needs to be learned a lot. And he has brought the entire strength into his game. That is one factor that probably not many cricketers have been able to do so. And earlier he was more of a calm or a quiet, little aggressive player. And right now he's a strength player. So that particular transition, I think that is what you are referring to, getting the strength नहीं into the game. मैं स्टैंड टीम, जैसे आपने फिटनेस को लेकर बात की, उन्होंने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टीम का, जो बैक इन 2013 से या अब तक, तो अगर वो फिटनेस के ऊपर विराट की जब बात कर रहे हैं, विराट कोहली की अगर फिटनेस के ऊपर अगर टीम को इतना अच्छा करा है उन्होंने, तो वो सबसे पहले उन्होंने खुद अपनी फिटनेस इंप्रूव करी है। उसके बाद उन्होंने चाहे टीम को कि नहीं ये स्टैंडर्ड होना चाहिए टीम फिटनेस का, सबसे पहले उन्होंने खुद अपना स्टैंडर्ड हाई रेस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं टीम का ये होना चाहिए, तो उससे अच्छा है कि टीम आगे जाइए। और So that's what basically youngsters also look forward to. So cricket right now is it's just not only a practice game; it is more of the gym game also. जिम गेम तो मैं एग्री नहीं करूंगा, बट काइंड ऑफ कुछ हद तक कुछ चीजें जो गेम हर हर जिम एक्सरसाइज क्रिकेट में नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आपकी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, तभी आपके ट्रेनर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक चीजें आपको जहाँ आपकी स्ट्रेंथ वीक है उस चीज में वर्क करते हैं आप जिम में, या आपके
फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो आपको एक शेड्यूल बना के देते हैं प्रॉपर कि आपका कहाँ बॉडी वीक है, कहाँ से आपका पावर पुश होगी, कहाँ से आपकी स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में, तो उस चीज़ पे वो वर्क करते हैं आपसे। Because generally, like during our time, if we compare, there was a normal warm up exercise, probably 15-20 minutes of warm up exercise, and then we were off into the field playing. Right now, situation would be there is a proper management between your on field uh, game and off the field. Off the field, which includes more on your exercise routines, and also that is also a very important part. I think so, more an important part compared to your field presence. When you're talking बिल्कुल, about improvising on your strokes, improvising on your pull shots, so if the trainers are telling you maybe you need to improvise on those particular aspects, so you start इम्प्रोवाइज़ working on पर्टिकुलर these aspects, and you will start finding those improvements also in those areas. So, इम्प्रूवमेंट्स या so how is it with respect to short ball? So, like a traditional left-hander, are you comfortable playing short balls? आई एम कंफर्टेबल क्योंकि मैंने मैटिंग में खेलना स्टार्ट किया था रामनगर में। तो अच्छा, उसमें क्या था आपका बैक फुट जो है काफ़ी मैटिंग में जो बैक फुट आपका स्ट्रॉन्ग बैक फुट में नॉर्मली आप ज़्यादा बैक फुट में खेलते हैं। I think तो मेरा traditionally बचपन से mat cricket makes you prepared for for the shorter and the pacey wickets. Not the spin wicket, but या yeah, pacey. या आप अगर जैसे आप कोई भी जैसे आपका टूर है कहीं बाहर का क्योंकि मैंने विराट कोहली को ही देखा है अगर आपका कहीं बाहर टूर है, कहीं आपको ग्रास की विकेट है या बाउंस विकेट है, तो आप उस विकेट में उन्होंने प्रैक्टिस करी है काफ़ी। अगर आप Uh, mm, उसके अकॉर्डिंग आपके कहीं सीरीज बाहर है, आपको बाउंस की शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करी काफ़ी, 1 महीना आपने शॉर्ट बॉलें खेली हैं काफ़ी। mm. But अभी ये cemented wicket भी use होते हैं क्या for practice? बिल्कुल होते हैं। आप स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपको अपनी बैटिंग में कुछ बेसिक चीज़ें ठीक करनी हो, जैसे आपको बैक फुट आपका अच्छा प्रॉपर नहीं आ रहा हो या कवर ड्राइव अच्छी नहीं आ रही है, तो आप प्लास्टिक बॉल्स और सॉफ्ट बॉल्स आती है, उसके सीधे आप प्रैक्टिस करते हैं। Okay, but on a cemented track. So, like during our time, there was a cemented track that used to be done at school level, and उसके ऊपर फिर मैट लगाते थे. तो उसमें जो है बॉल की स्पीड और तेज आती थी ऑन अ सीमेंटेड अब ट्रैक एंड अ मैट. अब जैसा क्या है, अब जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं सारे, उनको अपना उनको अपना पता रहता है कि मेरे को कहाँ वीकनेस है मेरी, कहाँ मेरे को क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। तो वो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन अडैप्ट करते हैं कि मेरे को कहाँ प्रैक्टिस करनी है, मेरी ग्रास पे रहेगी, मेरे को ग्रास पे खेलना है, मेरे को सीमेंट पे खेलना है। सीमेंट में खेलना है, मेरे को सिर्फ बॉलें लगानी है, मिलानी है, अगर मेरे को सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो आप सीमेंट में खेलो, सीधी बॉल होती है, आप कॉन्फिडेंस मिल सकते हो। उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी पता रहती है कि मेरे को क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करते हैं। बट ओनली थिंग मैट क्रिकेट में आई थिंक सो स्पिन यू आर नॉट एबल टू स्पिन विकेट इतना होता नहीं है ऑन अ मैट. नहीं, थोड़ा बाउंस रहता है उसमें हल्का-सा। बाउंस होता है बैक थोड़ा, वो बैक स्पिन आती है. तो बैक स्पिन या स्पिन खेलने के स्पिन लिए आप ग्रास पे आप अगर आपको स्पिन खेलनी है, आप ग्रास में नॉकिंग कर सकते हो ओके ग्रास पे ही करते विदाउट एनी पिच और एनीथिंग. विदाउट एनी पिच। ग्रास पे क्या है कि आप जितना बॉल को लेट खेलोगे तो उतने अगर आप जैसे स्ट्रेट में खेलते तो आप ऐसे चलाओगे तो आपको ऐसे लगेगी बॉल, अगर आप कहीं भी चलाओगे। लेकिन ग्रास पे क्या है, अगर आप कहीं ऐसे चला दिया आपने तो कनेक्ट नहीं होगी बॉल, तो उसके लिए आपको स्लोली ग्रास में आपको लगानी पड़ती है, बॉल मिलानी पड़ती है। तो उससे क्या गेम इम्प्रूव होता है, थोड़ा और अच्छा आता है। वही उसके बाद अगर आप ग्रास पे प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप डायरेक्ट अगर मैच खेलते हो तो आप टाइमिंग बहुत फर्क पड़ता है। So, Anuj, what message do you want to give to the young budding cricketers or aspirants of Uttarakhand? ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और नॉर्मली नॉर्मल भी और लॉकडाउन में भी दोनों मैसेजेस चाहिए आपसे. लॉकडाउन में मैम जैसे कि आप देखो कि कुछ नहीं कर पा रहे ज़्यादातर, तो आप बेसिकली आप क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो, वो उसके बाद आपका मेंटल जो है वो बहुत 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 ज़रूरी है मेंटल। इट्स मोर मेंटल अगर आप हाई लेवल पे खेल रहे हो। तो आप इस लॉकडाउन में आप मेंटल अपनी मेडिटेशन आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस लॉकडाउन में। क्योंकि मोर ऑफ आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पे रह के मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपके बहुत काम आएगा अगर आप प्रोफेशनल हाई क्रिकेट खेलते हो।
और हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क आपको करना ही है, उसका तो कोई वही नहीं है, वही नहीं है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपको लगता है कि काफ़ी काफ़ी यंगस्टर्स होते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, वो दिन रात लगे पड़े रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, फिर उसके बाद कुछ होता नहीं है, तो वो फिर डीमोटिवेट होते हैं कि मैं तो इतने घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा। अब प्रैक्टिस के पीछे भी एक वो है, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्या चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक चीज़ बोली हुई है, पर्पसफुल परफेक्ट प्रैक्टिस, एक होता है प्रैक्टिस, फिर एक होता है परफेक्ट प्रैक्टिस, फिर एक होता है पर्पसफुल परफेक्ट प्रैक्टिस, कि आप किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका अगर आपकी कोई चीज़ वीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनलेस कि आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 घंटे, वो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। स्मार्ट क्रिकेट जिसे कहते हैं वो यही है, अगर आप को पता है कि आपकी क्या खामी है, आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो स्मॉल टाउन से जो लोग ज़ेनिथ जाते हैं, मतलब टॉप पे जाते हैं, उनके लिए वो जर्नी के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ कि कैसे रहती है वो जर्नी? हमें सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मॉल टाउन से हो चाहे बिग टाउन से, अगर आपके सेल्फ बिलीव नहीं है तो फिर बेकार है। तो सेल्फ बिलीव आपको पता है कि नहीं, हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे को लगता है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर आपको सेल्फ बिलीव है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपने 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई अभी इस वाले उसमें फ़ेज़ में कि वो ये थी, एक तो आपने ये बताया कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सिर्फ़ क्रिकेट में ही नहीं, मेरे ख़्याल से लाइफ़ के हर उसमें पहलू में ज़रूरी है कि आइडेंटिफ़ाई व्हाट यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सो आइडेंटिफ़िकेशन जहाँ हाँ, होगा वहाँ किस चीज़ सॉल्यूशन भी किस चीज़ की होगा। ज़रूरत है? हाँ, और दूसरी बात आपने जो बताई कि आपने बताई कि कैसे सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अब जाते-जाते बस आप ये बता दीजिए, एक तो किसके अंडर ट्रेन कर रहे हैं? हू इज़ योर ट्रेनर? कोच जो हैं आपके कोच। हू इज़ योर कोच एंड हाउ यू वर सिलेक्टेड फॉर योर सिलेक्टेड फॉर स्टेट, रणजी और आईपीएल। हाँ, आपकी सिलेक्शन जो हुआ, वन बाय वन आप बता मेरा दीजिए। मेरा कोच जो है वो तो मिस्टर राजकुमार शर्मा सर हैं, दिल्ली में, क्योंकि जब मैं रामनगर से दिल्ली शिफ्ट किया था तो मैं डायरेक्ट उनकी अकेडमी में गया था। तो उन्होंने काफ़ी बिलीव दिखाया। मैं जैसे 5 साल मैंने मेरा लोकल्स में सिलेक्ट नहीं होता था स्टेट टीम में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेहनत करिए, आप एक ना एक दिन आप वो खेलोगे। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ हमेशा बताते रहे हैं, अगर जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं होता था अंडर 16 अंडर 14 में दिल्ली में, तो उन्होंने हमेशा यही चीज़ कही है कि आप निराश मत होइए आप, अगर आप अच्छे हैं तो आप डेफ़िनेटली आप एक दिन वो खेलेंगे। तो वो मैं काफ़ी उनकी एडमायर करता हूँ वो चीज़। One last message. Shubhang, anything else? I think Anuj, that was really nice Very talking to nice. you. In fact, I kind of relived my playing days. My only best wishes for you, and I just wish that obviously you have the raw talent, you have all the expertise that you are working on. I just wish that you have excellent match temperament and the kind of temperament that you have, and you can win us matches in future. And very soon we'll be seeing you with the Indian cricket. Thank you, Anuj, for being with us. I know it is you are training right now. आप का पास काफी सुबह से आप बिजी रहते हैं, लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद शुभांग।